Hello everyone, welcome back to Excel Learning. Today we are going to look into a new poem that is Holy Sonnet 10, Death Be Not Proud, written by John Donne. And this poem is in class 12 ISC. Right now, without wasting any more time, let's get into the chapter. Everything I have kept ready for you, and I request you all, before understanding the poem, please take the book or take a pencil so that you can note down all the points that I'm going to tell you, because this poem is, or this video is going to be extremely informative for you all. I have kept ready the explanation also. I do believe, it is my belief that after watching the entire video there would be not a single trace of doubt. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पोएम से. होली सोनेट 10, डेथ बी नॉट प्राउड, रिटन बाय जॉन डन. देखो, before understanding the poem we need to know something. Okay, first of all, it is a religious poem. This is very important. ये point अपने दिमाग में रखना, ठीक है. This is a religious poem and it is one of Donne's holy sonnets, a series of 19 poems. तो जॉन डन ने एक सीरीज लिखा था 19 पोएम्स का, जिसका नाम है होली सोनेट. ओके, ये लिखा हुआ था बिटवीन 1609 to 1617 एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1633. तो होली सोनेट्स में क्या है, होली सोनेट्स में टोटल 19 पोएम्स है और उस 19 पोएम्स में से आज हम लोग पढ़ेंगे होली सोनेट 10, जिसका नाम है डेथ बी नॉट प्राउड. क्लियर? नाउ थर्ड वन. दिस पोएम एलिवेट्स द क्रिश्चियन बिलीफ ऑफ ह्यूमन सोल एज इमॉर्टल, कि ह्यूमन सोल जो है वो इमॉर्टल है. और इस पोएम में इसी थॉट को, यही डॉक्ट्रिन को दिखाया गया है. हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे इस पोएम का, फिर हम लोगों को ये पूरा जो कंसेप्ट है ये समझ में आ जाएगा. आई डू प्रॉमिस यू ऑल. ओके, फोर्थ वन, दिस पोएम पर्सोनिफाइज डेथ. तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्रू आउट द पोएम डेथ हैज़ बिन पर्सोनिफाइड. तो यहाँ से हम लोगों को ये चीज़ दिमाग में रखना होगा कि जब भी हम लोग इस पोएम का क्वेश्चन आंसर करेंगे, लिखेंगे, डेथ को हमेशा कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करेंगे, क्योंकि इस पोएम में डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स याद रखो, इतना काफ़ी है. चलो अब हम लोग जाते हैं अंडरस्टैंडिंग द पोएम. ये एक सोनेट है, ठीक है. 2 लाइन करके मैं एक्सप्लेन करूंगा और देखना पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. मैं पहले ये बता दूं, यहाँ पे 2 लाइन्स है और फिर ये 2 लाइन का जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन येलो में दिया हुआ है. ठीक है, देखो. डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी mighty and dreadful, for thou art not so. So from the very beginning, from the very first line, we can see that the poet is actually threatening death, and it is a kind of conversation, one-sided conversation between the poet and the death. Okay, throughout the poem we will see that only the poet is talking to the death. Death is not answering. In this poem the poet is working, the poet is playing the role of the speaker, whereas death is playing the role of the listener. One sided conversation है इस poem में. तो from the very first line the poet is telling death, मृत्यु, be not proud, तुम इतना प्राउड फील मत करो, तुम ज़्यादा उछलो मत, ज़्यादा कूदो मत तुम. दो सम हैव कॉल्ड दी, हालांकि तुम्हें बहुत जन क्या मानता है, माइटी एंड ड्रेडफुल. दैट मीन्स द पोएट इज एक्चुअली थ्रेटिंग द डेथ, दैट death should not feel proud of itself. Though many people consider death as very proud, very mighty and dreadful, for thou art not so. Actually तुम वैसा कुछ भी नहीं हो. So the very first 2 line also tell us that the poet is a dabang kind of poet, right? The poet is fearless and the poet is warning death कि please don't feel extreme proud of yourself. Why? Because you are not at all mighty and dreadful. हालांकि लोग समझते हैं, लोगों का ये कहना है कि तुम बहुत माइटी हो, तुम बहुत ड्रेडफुल हो, लेकिन एक्चुअली तुम ना तो माइटी हो ना तो ड्रेडफुल हो. सो तुम्हें
प्राउड फील करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, देखो एक्सप्लेनेशन में मैंने वही लिखा है, इन दिस लाइन्स द पोएट इज थ्रेटिंग डेथ डायरेक्टली सेइंग दैट इट शुड नॉट be so proud. Though people consider death mighty and dreadful, actually death is not like that. तो इंसान ये कंसिडर करता है कि डेथ जो है वो बहुत माइटी है, वो बहुत ग्रेटफुल है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला जो दो लाइन है, ये दो लाइन में ही देखो पोएट डेथ का जो रैंक है उस रैंक को नीचे कर दिया है। आई होप फर्स्ट टू लाइन्स आर कंप्लीटली क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन। देखो, फॉर दोज whom you think thou dost overthrow, die not, पुअर डेथ, ये एक की फ्रेज है, ठीक है। ऊपर माइटी एंड ग्रेटफुल की फ्रेज है, यहाँ पे पुअर डेथ एक की फ्रेज है। नॉर येट कान दाउ किल मी, हालांकि पोइट यहाँ पे ये बता रहा है कि तुम जिसको मारते हो, यहाँ पे ओवरथ्रो का मतलब मार देना, ठीक है। तुम जिसे मारते हो ये तुम्हें लगता है कि तुमने उसे मार दिया है, एक्चुअली दे डोंट डाई, यू आर पुअर डेथ, यू आर एन अनफॉर्चुनेट डेथ। यहाँ पे डेथ को पुअर बताया जा रहा है, यानी कि अनफॉर्चुनेट, यानी कि मानो कि मैं अगर तुम्हें डराऊंगा तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये एक मैं एक आशा करूंगा, एक्सपेक्टेशन रहेगा कि नहीं भाई मैं इसे डरा रहा हूँ तो ये डर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें डरा रहा हूँ और तुम नहीं डर रहे हो, इसका मतलब मैं अनफॉर्चुनेट हूँ, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो गलत है। सिमिलरली इसी तरह पोइट यहाँ पे डेथ को ये बता रहा है कि फॉर दोज whom you think thou dost overthrow, die not, कि तुम जिसे मारते हो, जिसे ओवरथ्रो करते हो, ओवरथ्रो मतलब यहाँ पे मार देना, तुम जिसे ओवरथ्रो करते हो, तुम जिसे मारते हो, एक्चुअली दे डोंट डाई, वो लोग मरता नहीं है, यू आर पुअर डेथ, दैट मीन्स यू आर अनफॉर्चुनेट डेथ। नॉर येट कांस दाउ किल मी, और इसी तरह तुम मुझे भी नहीं मार सकते। सो दिस लाइन, नॉर yet canst thou kill me, this line once again represents the fearlessness of the poet. The poet is not at all afraid of death, though many people consider death as mighty and dreadful, but here the poet is just opposite to that particular doctrine that डेथ इज़ माइटी एंड ड्रेडफुल। ये पोइट का मानना नहीं है। पोइट यहाँ पे एकदम डायरेक्ट थ्रेट कर रहा है और या फिर स्टेटमेंट दे रहा है डेथ को कि तुम जिसे मारते हो तुम्हें लगता है कि वो लोग मर चुका है, एक्चुअली दे डोंट डाई, वो लोग नहीं मरता है, और इसी तरह तुम उन सब को नहीं मार सके हो तो इसी तरह तुम मुझे भी नहीं मार सकते हो, यू कैन नॉट किल मी। समझ में आया? अब देखो एक्सप्लेनेशन। To continue the doctrine, the poet says that the people whom death has overthrown, यानी कि जिसे मार दिया है, do not die because death has no such power, क्योंकि डेथ का वैसे कोई पावर है ही नहीं। It is weak and incapable. Death cannot kill any human soul which is deathless, and सो डेथ कैन नॉट किल द पोएट। ओके, तो ये जो थर्ड और फोर्थ लाइन है, यहाँ पे हम लोग को ये भी बताया जा रहा है कि दिस टू लाइन्स ऑल्सो शोज द द पावरलेसनेस ऑफ डेथ। डेथ पावरलेस है, ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ये भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। द पावरलेसनेस ऑफ डेथ एंड अनफॉर्चुनेटनेस ऑफ डेथ। सो आई होप थर्ड एंड फोर्थ लाइन भी क्लियर है। नाउ फिफ्थ एंड सिक्स्थ लाइन देखो, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, यानी कि एक्चुअली इन दिस लाइन्स द पोइट हैज कंपेयर्ड डेथ टू रेस्ट एंड स्लीप। ये जो दो लाइन है यहाँ पे पोइट ने डेथ को कंपेयर किया है किसके साथ? रेस्ट और स्लीप के साथ। तो यहाँ पे पोइट ये एक्चुअली बता रहे हैं कि डेथ तुम कुछ भी नहीं हो, तुम क्या हो? तुम एक पिक्चर की तरह हो। जैसे कि एक पिक्चर जो है, ओके, हम लोग घर में सजा के रखते हैं, सो देयर इज़ नो मूवमेंट इन द पिक्चर। सिमिलरली व्हेन अ मैन डाइज,
at that time there is no movement in the man. That means this is nothing more than a picture which is hung on our होम सॉरी ऑन द वॉल। ओके, तो डेथ जब होता है किसी इंसान का, जब डेथ हो जाता है, कोई इंसान जब मर जाता है तो उसमें भी कोई मूवमेंट नहीं रहता है। तो ये क्या है, ये कुछ भी नहीं, ये बस एक पिक्चर है। और डेथ के बाद क्या होता है, डेथ के बाद इंसान को रेस्ट मिलता है, डेथ के बाद इंसान सो पाता है। हालांकि अपनी पूरी ज़िंदगी में वो इंसान रेस्ट नहीं कर पाया, नहीं सो पाया ठीक से, लेकिन डेथ यहाँ पे क्या क्या, डेथ को ये लग रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ, देखो मैं कितना महान हूँ, मैं कितना पावरफुल हूँ कि मैंने इसे मार दिया। लेकिन यहाँ पे इसी ये जो टोटल सिनेरियो है, इस सिनेरियो को यहाँ पे पोएट कुछ अलग तरीके से देख रहा है। पोएट ये बता रहा है कि डेथ कुछ भी नहीं है। क्या है डेथ, बस रेस्ट एंड स्लीप है, और ये एक फॉर्म ऑफ पिक्चर है। मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। दैट मीन्स इन दिस लाइन्स the poet has compared death to rest and sleep. He says that death is nothing more than a picture of sleep, कि एक picture of sleep छोड़ के death और कुछ भी नहीं है। He also adds that death brings only pleasure, कि इंसान जब मर जाता है उसमें कोई मूवमेंट नहीं रहता है। इसी चीज़ को पोइट ने दूसरे एंगल से देखा। पोइट ने ये कहा कि वो बंदा, वो इंसान जिसका देहांत हो चुका है, वो एक्चुअली अभी रेस्ट ले रहा है, और उस इंसान को रेस्ट किसने दिया, डेथ ने रेस्ट दिया। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि डेथ बहुत पावरफुल है या फिर डेथ बहुत ड्रेडफुल है, बहुत माइटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेथ ने क्या किया, डेथ ने उसे मारा नहीं, हालांकि डेथ ने उसे प्लेजर दिया, उसे आराम दिया, अ सेंस ऑफ रिलीफ दैट फ्लोज फॉर एवर। सो आई होप ये दो लाइन भी क्लियर है। देखो अब नेक्स्ट टू लाइन, सूनेस्ट आवर बेस्ट मैन विथ दी डू गो। यहाँ पे दी मतलब यू, ठीक है, विथ यू। तो रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। अब ये दो लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पोइट यही बता रहा है कि क्या होता है उसके बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल डेथ ब्रिंग्स ओनली प्लेजर, एंड देन द बेस्ट और वर्चुअस मैन ऑन द अर्थ डाई सून, कि हम लोग का जो बेस्ट मैन है, हम लोग का जो वर्चुअस मैन है, उन लोगों का देहांत हो जाता है, दे डाई सून। डेथ डिलीवर्स देयर बॉडीज एंड दे हैव पीस एंड रेस्ट विच दे डू नॉट एक्सपीरियंस इन लाइफ ड्यू टू हार्ड वर्क, डिप्राइवेशंस, पेन एंड सफरिंग। तो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली चीज़ यही है कि डेथ ने, हालांकि ये डेथ को लग रहा है कि डेथ ने उस इंसान को मार दिया है, लेकिन एक्चुअली डेथ ने क्या किया है, डेथ ने उसे आराम दिया है, जो आराम वो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं मिला उसे। किस लिए, बहुत काम के वजह से, बहुत डिप्राइवेशन के वजह से, पेन के वजह से, सफरिंग के वजह से। अब एक चीज़ तुम ऐसे समझो, देखना कभी कभार ये हम लोग के साथ भी होता है कि घर में जो बुज़ुर्ग इंसान होते हैं ना, वो कभी कभार ऐसा बोलते हैं कि मैं और ज़िंदा नहीं रहूँगा, मैं बहुत जल्दी मर जाऊँगा। ये वो लोग क्यों कहते हैं, ये कहते हैं क्योंकि उन लोगों को इतना पेन होता है, इतना तकलीफ़ होता है कि उन लोगों को कभी कभार ये लगता है कि इतना पेन सहने से अच्छा है कि मर जाओ। तो समहाउ दोज ओल्ड पीपल फाइंड रेस्ट एंड प्लेजर इन डेथ ओनली। ओके, उन लोग को ये लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो शायद मुझे इस पेन से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे पोइट का भी यही कहना है कि एक्चुअली डेथ क्या है, डेथ के बाद क्या होता है, इट्स नथिंग बट रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, कि इंसान रेस्ट ले पाता है। तो उस इंसान को वो रेस्ट किसने दिया, डेथ ने दिया। तो यहाँ पे पावरफुल डेथ कहाँ से हुआ, डेथ तो पावरफुल नहीं हुआ, ना तो माइटी हुआ, ना तो ड्रेडफुल हुआ। तो डेथ को हालांकि ये लग रहा है कि देखो मैं कितना महान हूँ, मैं एकदम बाहुबली टाइप हूँ, ठीक है, तो मैं महान हूँ और देखो मैंने इनको मार दिया। लेकिन एक्चुअली नहीं, एक्चुअली डेथ ने उसे रेस्ट दिया है, और उसका सोल जो है, उनका सोल का मतलब बॉडी का विनाश हो जाता है, लेकिन सोल का विनाश नहीं होता है। तो अगर सोल का विनाश, आत्मा जो है, अगर सोल का विनाश होगा नहीं तो इंसान मरेगा कैसे। आई होप ये लाइन भी क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट वन, बहुत इंपॉर्टेंट है। Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men, and dost
विथ पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ड्वेल। तो यहाँ पे कुछ लोली एजेंट्स को बताया जा रहा है कि पॉइजन वॉर एंड सिकनेस। यहाँ पे और एक बात है कि पोएट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक्चुअली पोएट यहाँ पे टॉन्ट कर रहा है डेथ को कि डेथ, तुम्हें ये लगता है कि तुम महान हो, तुम्हें ये लगता है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, एक्चुअली यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। वाई? बिकॉज दाउ आर्ट मीन्स यू आर स्लेव, तुम एक नौकर हो। किसके नौकर हो? फेट, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन। फेट एंड चांस मतलब क्या? फेट एंड चांस देखो इसका मतलब दे ब्रिंग इंस्टेंट डेथ, कि कोई इंसान जा रहा है कहीं पे, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और उनका देहांत हो जाता है, तो इंस्टेंट डेथ हुआ। ठीक है, और ऐसा होता है कि कभी कभार जो किंग है यानी कि जो गवर्निंग बॉडी पे है या फिर क्रिमिनल है, वो लोग भी हम लोगों को, वो लोग भी एक एंड कर सकता है हम लोग का लाइफ का, कि किसी को किसी ने मार दिया हो ना, होता है ना कि दुश्मनी होता है तो मार दिया। तो अगर ये सब नहीं होगा तो कोई मरेगा नहीं, यानी कि अगर किसी को मरना है तो, या फिर डेथ को ही अगर किसी को मारना है तो डेथ को सहारा लेना पड़ता है किसका? फेट का, या फिर चांस का, या फिर किंग्स का, या फिर डेस्परेट मैन का। डेस्परेट मैन मतलब यहाँ पे क्रिमिनल। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो कोई मरता नहीं है, राइट। उसके साथ डेथ का कुछ लो एजेंट्स भी है, हालांकि पॉइजन, अगर किसी को जहर दे दो तो वो मर जाएगा, यानी कि डेथ को अगर किसी को मारना है तो डेथ को सहारा लेना पड़ेगा पॉइजन का, राइट। अच्छा, वॉर का, वॉर में भी बहुत सोल्जर्स और सिविलियंस का डेथ होता है, तो यहाँ पे भी एक डेथ को सहारा लेना पड़ता है वॉर का। और सिकनेस ड्वेल, और सिकनेस का भी होता है ना कि कभी कभार हम लोग के फैमिली भी बहुत जन होता है कि कोई किसी बुजुर्ग इंसान बहुत दिन से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 8 साल से एकदम सिक है, एकदम बेडरिडन है, तो उनको भी जब डेथ आता है, उनका भी जब देहांत होता है, तो डेथ को सहारा लेना पड़ता है किसका? सिकनेस का। तो देखो यहाँ पे डेथ, दो डेथ थिंग्स दैट इट इज इंडिपेंडेंट, एक्चुअली डेथ इज नॉट इंडिपेंडेंट। डेथ हैज टू टेक हेल्प टू किल समवन। किसी को डेथ को ये सहारा लेना ही पड़ेगा। डेथ हैज टू टेक हेल्प ऑफ फेट, चांस, किंग्स और डेस्परेट मैन, या फिर पॉइजन, वॉर और सिकनेस का। इन सब का सहारा डेथ को क्यों लेना पड़ेगा? किसी को मारने के लिए। तो डेथ कहाँ से पावरफुल हुआ? अगर मैं पावरफुल हूँ तो मैं किसी को ऐसे ही मार सकता हूँ। अगर मैं किसी को मारने के लिए किसी का सहारा लेता हूँ, सो इट इज़ वेरी एविडेंट दैट आई एम नॉट एट ऑल powerful. Similarly, the poet says that death is not at all powerful. Why? Because death itself cannot kill anyone. Rather, death has to take help of fate, chance, kings and desperate men, या फिर पॉइजन, वॉर या फिर सिकनेस का। इन सब का अगर हेल्प डेथ नहीं लेता है तो डेथ किसी को नहीं मार पाता है। क्लियर? सो देखो एक्सप्लेनेशन में भी मैंने वही लिखा है। फर्दर द पोएट टर्न्स दैट इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि डेथ इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। इट हैज़ टू टेक हेल्प ऑफ समथिंग और समबडी टू फंक्शन। ये काम करने के लिए किसी का हेल्प चाहिए। इट इज़ अ स्लेव टू चांस एंड फेट। चांस या फेट का स्लेव है जो कि इंस्टेंट डेथ हम लोग को देता है, या फिर किंग्स एंड डेस्परेट मैन का जो कि एक एंड ला सकता है हमारे जीवन में। इवन डेथ हैज़ लो कंपनीज लाइक वॉर, पॉइजन एंड सिकनेस। तो डेथ फंक्शंस थ्रू दीज लोली एजेंट्स, और इसी के द्वारा, इसी का सहारा लेके डेथ जो है वो अपना काम करता है। सो आई होप क्लियर। देखो, एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अ स्लीप एज वेल एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, वाई स्वेलेस्ट दाउ देन। तो बहुत अच्छा लाइन है यहाँ पे। पोइट ये बता रहा है कि डेथ एक्चुअली ब्रिंग्स अ लिटिल स्लीप। डेथ एक छोटा सा स्लीप, नींद हम लोग को देता है। वेर एज सम स्लीप इंक्लूडिंग एजेंट्स लाइक इंटॉक्सिकेंट्स, ओपियम और एनी मैजिकल चार्म्स कैन ब्रिंग बेटर स्लीप। कि डेथ क्या होता है, एक बात को तुम समझो कि मानो कि एक इंसान, मतलब मानो कि कुछ एक इंसान जिंदा है, वो अपने लाइफ में काम कर रहा है, ठीक है। अचानक से उन्हें
हार्ट अटैक आ जाता है और उनका देहांत हो जाता है। तो देखो डेथ का यहाँ पे काम है वही बस 2 से 5 मिनट का जो काम है कि उनको हार्ट अटैक आया, उनको डॉक्टर के पास या फिर हॉस्पिटल ले जाने के लिए टाइम नहीं मिला, उनका डेथ हो गया। तो यही जो 2-5 मिनट या फिर 10 मिनट का जो काम है, डेथ का काम बस इतना ही है। डेथ हम लोगों के लिए बस इतना ही कर सकता है। हालांकि यहाँ पे पोइट ने कहा है कि उससे ज़्यादा अच्छा स्लीप हम लोग को देता है पॉपी या फिर मैजिक चार्म। पॉपी मतलब ओपियम, ठीक है, एक नशा करने का ये होता है, चीज़ होता है। तो पॉपी या फिर मैजिक चार्म उससे ज़्यादा हम लोग को स्लीप देता है। एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, यहाँ पे स्ट्रोक मतलब किसी को मारना, ठीक है। स्ट्रोक वाई स्वेलेस दाओ दिन, तो तुम इतना प्राउड क्यों फील करते हो। देखो एक्सप्लेनेशन में, द पोएट बिलीव्स दैट डेथ गिव्स अस अ लिटिल स्लीप, कि डेथ हम लोग को बस छोटा सा या फिर थोड़ा सा नींद हम लोग को देता है, वेर एज ओपियम और मैजिकल चार्म्स कैन गिव अस अ बेटर स्लीप। हालांकि कोई भी नशे का चीज़ या फिर लाइक कोई मैजिकल चार्म उससे ज़्यादा हम लोग को सुला सकता है। डेथ हम लोग को कुछ देर के लिए सुलाता है, लेकिन अगर कोई कुछ नशा करता है तो वो ज़्यादा देर के लिए सोता है। देयर मतलब यहाँ पे ओपियम और मैजिकल चार्म्स, स्ट्रोक इज़ हार्डर एंड बेटर देन द डेथ। तो कोई नशे का चीज़ या फिर मैजिकल चार्म हम लोग को जो स्लीप देता है, हम लोग को जो रेस्ट देता है, वो डेथ का दिया हुआ स्ट्रोक से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। सो वाई डज डेथ पफ अप विथ प्राइड सो मच। अब यहाँ पे पोइट ने क्वेश्चन किया है, तो डेथ का तो भाई कोई पावर है ही नहीं, डेथ तो क्यों इतना वो उछलता है, डेथ क्यों इंसानों के दिल में डर पैदा करता है, डेथ क्यों इतना लाइक अहंकार करता है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर डेथ को ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज हियर through each and every sentence, through each and every line, the poet is proving that death has no power to kill anyone, death is not independent, and death has to take help of something to kill someone। तो यहाँ पे डेथ को इतना प्राउड नहीं फील करना चाहिए, ये पोइट का ओपिनियन है। अब लास्ट 2 लाइन्स, ओके। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट we wake eternally, and death shall be no more, death thou shall die। Extremely important and fascinating lines। So actually according to the poet death is nothing but one short sleep। डेथ कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा नींद की को छोड़ के, ओके। Those who experience death wake up eternally, only their bodies perish, their souls remain intact as they are beyond the power and ken of death। तो एक चीज़ देखो, पोइट कितना अच्छा हम लोग को ये समझा रहा है कि वन शॉर्ट स्लीप, डेथ जो है वो हम लोग को एक छोटा सा स्लीप देता है, एक शॉर्ट स्लीप देता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग इटर्नली जाग जाते हैं, हम लोगों में स्पिरिचुअलिटी आ जाता है। तो डेथ जब तक हम लोगों को टच नहीं करता है, डेथ जब तक हम लोगों को शॉर्ट स्लीप नहीं देता है, उससे पहले हम लोगों को रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअलिटी हम लोगों में नहीं आता है। बट एज सुन एज डेथ कम्स टू अस वी वेक इटर्नली, दैट मीन्स वी गेट एनलाइटमेंट, वी गेट स्पिरिचुअलिटी, तब हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी मिलता है। एंड उसके बाद डेथ शैल बी नो मोर, उसके बाद डेथ नहीं रहता है। एक चीज़ देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ बस तब तक मुझे डर रहेगा कि मैं किसी ना किसी दिन मरूंगा, लेकिन जिस दिन मैं मर जाऊंगा उसके बाद से डेथ एकदम इनवैलिड हो जाएगा, डेथ मेरे लाइफ में इनएक्टिव हो जाएगा, डेथ नहीं रहेगा, मेरा जो सोल है वो इटर्नली अवेकन हो जाएगा। तो यही जो डॉक्ट्रिन है, यही जो थॉट है, यही पोइट बता रहा है कि वन शॉर्ट स्लीप, एक छोटा सा स्लीप, एक छोटा सा नींद, उसके बाद हम लोग का डेथ हो जाता है, और डेथ के बाद वी वेक इटर्नली, हम लोगों में एनलाइटमेंट आ जाता है, हम लोग स्पिरिचुअली जाग जाते हैं। एंड डेथ शैल बी नो मोर डेथ, और डेथ इटसेल्फ बिकम्स पावरलेस। तो जब तक कोई जिंदा है बस तब तक डेथ का पावर है, मृत्यु हो जाने के बाद डेथ का कोई भी पावर नहीं है। उसके बाद क्या होता है, डेथ दाउ शैल डाई, उसके बाद डेथ का
खुद ही डेथ हो जाता है, क्योंकि डेथ इनएक्टिव हो जाता है, डेथ पावरलेस हो जाता है, तो डेथ का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसका मतलब डेथ का डेथ हो जाता है। क्लियर? देखो एक्सप्लेनेशन। द पोएम एंड्स विथ एन ऑप्टिमिस्टिक टोन। द पोएट asserts that death is just a short sleep and after that we wake up eternally। कि डेथ एक छोटा सा स्लीप है, एक शॉर्ट स्लीप है, उसके बाद हम लोग स्पिरिचुअली जाग जाते हैं। आफ्टर दैट, सॉरी, आफ्टर डेथ only our bodies get perished, not soul। Death has only this much power, that is to kill us, and after that डेथ बिकम्स पावरलेस। तो डेथ के पास बस इतना सा ही पावर होता है कि वो किसी को मार देगा, उसके बाद डेथ का खुद डेथ हो जाता है, डेथ का कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। यहाँ पे आके पोएम जो है वो ख़त्म होता है। सो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको एक्सप्लेनेशन में। अब चलो थोड़ा लिटरेरी डिवाइस हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये मैंने पहले ही बताया। एपोस्ट्रोफी यूज़ किया गया है यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पोएम में डेथ जो है उसको पर्सोनिफाई किया है गया है, ठीक है। और ये एपोस्ट्रोफी क्या है? एपोस्ट्रोफी इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू अ नॉन ह्यूमन एंटिटी। याद रखना, नॉन ह्यूमन एंटिटी और एन एब्सेंट पर्सन। इन दिस पोएम डेथ इज डायरेक्टली एड्रेस्ड 3 टाइम्स। 3 बार यहाँ पे डेथ को एड्रेस किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 4 एंड लाइन नंबर 14। लाइन नंबर 1 में कौन सा है? डेथ बी नॉट प्राउड। लाइन नंबर 4 में है डाई नॉट पुअर डेथ, ये वाला डाई नॉट पुअर डेथ। और लास्ट लाइन में है ये वाला डेथ दाउ शैल डाई। तो ये 3 बार यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज़ किया गया है। मेटाफर यूज़ किया गया है। डेथ को रेस्ट एंड स्लीप के साथ कंपेयर किया गया है और डेथ को स्लीप के साथ भी कंपेयर किया गया है। एलिट्रेशन यहाँ पे बहुत सारे यूज़ है, लाइक 1 शॉर्ट स्लीप पास्ट, एस साउंड का रिपीटेशन है, ठीक है। या फिर स्लीप एज वेल, मेक अस स्लीप एज। देखो यहाँ पे भी यहाँ पे भी तुम्हारा एलिट्रेशन है। और ऐसा बहुत सारे एलिट्रेशन थ्रू आउट द पोएम पोएट ने यूज़ किया है। मच मोर मस्ट, मच मोर मस्ट, यहाँ पे सब एलिट्रेशन है। पैराडॉक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक्चुअली पैराडॉक्स जो क्या है? अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट इज seemingly false or absurd but is actually true, as in the last line of the poem। देखो एकदम लास्ट लाइन में जो कि है, एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल डाई। यहाँ पे पोएट ने पैराडॉक्स यूज़ किया है। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। लास्ट ये पोएम मैं ख़त्म करूँगा। अब देखो और एक बात मैं आप लोगों को बताऊँ कि भगवत गीता में भी डेथ को ऐसे ही एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन भगवत गीता में कहा गया है कि death is actually a transition of the eternal soul from one physical body to another। कि डेथ जो है वो एक्चुअली सोल का ट्रांजिशन है, एक बॉडी से और एक बॉडी में जाना। और लास्ट में ये पोइम का जब आंसर लिखोगे आप लोग, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा ये लाइन ज़रूर कोट करना, क्योंकि देखो भगवत गीता में भी लॉर्ड कृष्णा ने यही कहा है कि फॉर द सोल देयर इज़ नाइदर बर्थ नॉर डेथ, इट इज़ नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन। तो सोल जो है, सोल का ना तो बर्थ होता है ना तो डेथ होता है। सोल का ना तो बर्थ होता है ना तो डेथ होता है। जब बॉडी ख़त्म होता है तो बस बॉडी ही ख़त्म होता है, सोल कभी भी ख़त्म नहीं होता है। सो यहाँ पे आ गया पोएम का एंड। मुझे ये विश्वास है कि पोएम बहुत एकदम मतलब अच्छे से आप सबने समझा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ सिंगल वीडियो व्हेनेवर वी अपलोड अ वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।